जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक 1 मदनतोड़ ग्राम स्थित एक पोल्ट्री फार्म में आज सुबह आग लगने से हजारों मुर्गी जल जाने के कारण इनके मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर रानीगंज से फायर गाड़ी पहुंचे। इसके अलावा जामुड़िया थाना एवं चिरुलिया पुलिस मौके पर आई। আমার দুটো লেবার খাবার দিচ্ছিল, খাবার দিতে দিতে পাম্প চালাতে গিয়েছিল, তো শর্ট সার্কিট কোনো হয়ে যায় এবং আগুন লেগে যায়। কটার সময় আগুন? 10:30টার সময় মোটামুটি। কি ক্ষতি হয়েছে? ক্ষতি হয়েছে প্রায় ওই ফার্মে প্রায় 2200 মুরগি ছিল, সব টোটালি পুড়ে মারা গেছে। আর জিনিসপত্র, ব্যাটারি, ইনভার্টার আর যা সব ছিল সবই কিচ্ছু পাওয়া যাচ্ছে না। খাবার ছিল মুরগি, সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। কি কারণে আগুন লাগলো সেটা জানা যায়? জানা যায় বলতে আমরা যতটুকু আন্দাজ করছি, আমার মনে হয় শর্ট সার্কিট। বলছি যে দেখুন, মুরগি তো মোটামুটি 5 লাখ টাকা তো হবেই। তখনই ফোন করেছে দমকল, তারপরে এলো। তারপর আমরা পাম্প দিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, তো নিয়েও গেছিল অনেকটা। এখন কি পরিস্থিতি আছে? কী বলবো, তখন যা ক্ষতি তো হলো, হবার হয়ে গেল। ক্ষতিপূরণ দেখা যাক কী করা যায়। কিছু কোম্পানি থেকে সেই কোম্পানি থেকে পাওয়া যাবে? দেখুন, কোম্পানি যারা আছে তারা তো খুবই ভালো, এবার তারা ভেবে দেখবে যে কী করা যাবে। কি নাম? संकित चक्रवर्ती। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। समाप्त चैटर्जी मेमोरियल आर्ट एंड म्यूजिक कॉलेज कला भारती पेंटिंग स्काल्पचार भारतनाट्यम कथक मणिपुरी और रवींद्र नृत्ये एडमिशन चलছে। Admission open for degree and diploma courses. Kala Bharati, NSB Road, Raniganj. Call 993224. सड़क पर दुर्घटना होने पर ट्रक चालकों को लाखों रुपयों का जुर्माना देना होगा। केंद्र सरकार के नई परिवहन कानून के खिलाफ देश भर में ट्रक ड्राइवर आंदोलन में शामिल हो गए। कुछ जगहों पर अनिश्चित काल के लिए नाकेबंदी है। इस बार पश्चिम बर्धमान जिले के कांगसा में 3 सरकारी तेल कंपनियों के सामने ईंधन तेल परिवहन के ट्रक चालकों ने सरकारी तेल कंपनी का गेट बंद नहीं किया और वे स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन में शामिल हो गए। एक ड्राइवर जियारुल हक ने शिकायत की कि राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न बिंदुओं पर खराब स्थिति में है, कहीं भीषण जाम लग गया है, इसलिए समय समय पर दुर्घटनाएं होती है। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे इस गाइडलाइन का पालन नहीं करते कि अगर कहीं दुर्घटना होती है तो वह वाहन चालकों को लाखों रुपयों का जुर्माना देना होगा। उन्होंने इस कानून को वापस लेने की मांग उठाते हुए ईंधन की ढुलाई रोक दी है। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, वही संचालन छोड़ो आंदोलन जारी रखेंगे। इस आंदोलन के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में ईंधन तेल की कमी हो सकती है। अशांति से बचने के लिए कांगसा थाने की पुलिस तैनात की गई थी। নতুন আইন জন্য আইনটা হচ্ছে যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট কোনো কারণে হলে 10 বছর জেল, 7 লাখ টাকা ফাইন দিতে হবে। এর পক্ষ আমরা বন্ধ করছি 3টাই ডিপো, ইন্ডিয়ান অয়েল, BPCL, HPCL, 3টা ডিপো বন্ধ করছি না। আমরা ড্রাইভার স্টিয়ারিং ছাড়ো আন্দোলন করছি। প্রথমে ড্রাইভার চায় কি কোনো জিনিস অ্যাক্সিডেন্ট না করি। আমরা একটা কুকুর, পিঁপড়ে কোনো মানুষকে মারতে চাই না। যদি কোনো কারণে এরকম হয়ে যায় তো এটা তো আমরা করতে সহ্য নাই। আমরা না কেন কি যদি আমাদের কাছে 10 লাখ টাকা 8 লাখ টাকা হয় তো আমরা কেন ড্রাইভারি করতে যাবো, কেন লোকে চাকরি করব? আমরা ছোটোখাটো বিজনেস করব, চা দোকান করব, কিছু করব, কিন্তু লোকে গাল খাবো না, কোনো আইনের মধ্যে যাব না, জেলে ভরা যাবে না। এর পক্ষ আমরা যতক্ষণ এই আইনটা তুলবে না আমরা অনিশ্চিতকাল হরতালে যাব। কতজন আছেন আপনারা? আমাদের মোটামুটি 1000 পেরিয়ে গেছে। কতগুলো গাড়ি চলে 3টাতে? মোটামুটি 1200-1400 গাড়ি আছে। আপনার নাম? আমার নাম জিয়াউল হক। করি না, কারণ আমাদের ড্রাইভার যারা গাড়ি চালায় তারা 10 বছর জেল খাটতে পারবে না। হ্যাঁ, আর এই আইনের বিপক্ষে সব ড্রাইভার, অল ইন্ডিয়া ড্রাইভার এই আইনের বিপক্ষে।
হ্যাঁ, অনিশ্চিতকাল হরতালে যাব। আমরা এরপর যেখানে হরতাল করছি এইটা জারি থাকবে, এই হরতাল সবসময়ের জন্য জারি থাকবে তখন আইনটা যতক্ষণ আইনটা বলবৎ না করছে ততদিন আইন হ্যাঁ এই আইনের জন্য প্রচুর সমস্যা। হ্যাঁ, একটা মানে 10 বছরের জেল প্লাস মানে 7 লাখ টাকা এটা দেওয়া সম্ভব নয়। হ্যাঁ, এটা বিপক্ষে আমরা, এটা আমাদের আন্দোলন। আমার নাম সুমন দত্ত। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। रानीगंज के मजाज शरीफ रोड इलाके में स्थित इकरापारा पब्लिक स्कूल में 1 तारीख की शाम को कुछ असामाजिक तत्वों ने स्कूल के दफ्तर का ताला तोड़कर अंदर रखी चीजें को उलट-पलट किया। इस संदर्भ में स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद वहीउद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि 1 जनवरी को स्कूल बंद थी। शाम को जब वो आए और शटर खोलकर जब अंदर घुसे तो देखा स्कूल के अंदर सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, कंप्यूटर, बैग इत्यादि इधर उधर बिखरे पड़े हैं। उनको देखते ही समझ आ गया कि कुछ ना कुछ अप्रिय घटना जरूर घटी है। इसे देखते ही वह बाहर आ गए और उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया। इसके बाद अपने कुछ दोस्तों को फोन किया। दोस्तों को साथ लेकर जब वह फिर स्कूल के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि क्लासरूम आदि में भी उन असामाजिक तत्वों द्वारा तांडव चलाया गया है। उन्होंने कहा कि चोरी नहीं हुई है, हालांकि जिस ड्रॉर में नगद रुपए रखे हुए थे उसको खोलने की कोशिश की गई थी क्योंकि उनके पास एक कैंची पड़ी हुई थी, लेकिन अपराधी उसे खोल नहीं पाए। उन्होंने कहा कि उनको अंदेशा है कि जो लोग आए थे वह तो या तो चोरी के मकसद से आए थे या स्कूल के अंदर अफरा तफरी मचाना ही उनका उद्देश्य था। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी छोटी मोटी घटनाएं हो चुकी हैं जिनको उन्होंने नज़रअंदाज किया, लेकिन आज की घटना यह बहुत बड़ी है, जिसके बाद उन्होंने इस बात का अंदेशा जताया कि ज़रूर इसके पीछे किसी की साजिश है। घटना की जानकारी मिलते ही रानीगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस घटना के पीछे या तो चोरी का मकसद हो सकता है या यह मामला आपसी रंजिश हो सकता है। पुलिस हर पहलू पर विचार करके जांच को आगे बढ़ा रही है। आज आए स्कूल, 1 जनवरी के लिए तो स्कूल बंद था। आज हम आए, ऑफिस में 2-4 मेरा काम था। जैसे ही शटर ओपन किया और अंदर आए, देख रहे हैं कि छोटा अफरा तफरी देखे। तो हम आगे और बढ़े, देखा कि CPU गिरा हुआ है, UPS गिरा हुआ है, बैग गिरा हुआ है चारों तरफ। हम देख के ही समझ में आया कुछ मामला है, तो हम फ़ौरन बाहर आ गए। बाहर आने के बाद मिसेस को हम कॉल किए कि ऐसा चीज़ हम देख रहे, तो मिसेस बोली कि अंदर मत आप जाइए। तो हम बोले कि ठीक है अंदर नहीं जाते। तो फिर दोस्त मोनू को भी कॉल किया, मोनू आया। जैसे मोनू आया तब हम दरवाज़ा पे देख रहे हैं कि दरवाज़ा बिल्कुल चाड़ के जैसे तोड़ा है। बस वहाँ तक फिर मोनू और मेरा दोस्त पूरा ग्रुप हम लोग अंदर गए। तो जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं कि एक क्लास देखी तो वहाँ पूरा अफरा तफरी था। जितना तार था, मेन स्विच मैंने वायरिंग तार सब निकाल दिया था, बोर्ड पूरा तोड़ दिया है। इस तरह का खुरापाती करके जो है वो किया है, ये बदमाशी किया है। जो किया है चोरी, इस तरह कुछ नहीं हुआ। और एक जो कैंची है वो मेरे ड्रॉर के पास में मिला है। उस कैंची से ड्रॉर को खोलने का कोशिश किया है, मगर चूँकि ड्रॉर नहीं खुला है तो वहाँ किसी तरह का वो अमाउंट नहीं ले पाया। बाकी वो टोटल उसका मिजाज ये था कि हमको खोल के अफरा तफरी करना था। वो अफरा तफरी किया है और अफरा तफरी करके गया। दिन हम नहीं आए, हालांकि रहते हैं, हमेशा रहते हैं, रात तक 11:30 तक रहते हैं हम और वॉच करते हैं, हर चीज़ देखते हैं। 1-2 दफ़े घटना हो गया, कभी बैनर तोड़ देना, कभी कुछ हंगामा कर देना, इस तरह का छोटा छोटा घटना हुआ है। मगर ये जो घटना हुआ ये बहुत दर्दनाक और बहुत तकलीफदायक है। समझ में नहीं आ रहा है कि किसका साजिश है, और बिल्कुल साजिश की नीयत से किया गया है। नहीं, अमाउंट का किसी तरह का चोरी नहीं। हालांकि हम बताएं ना आपको, वो कैंची मेरे ड्रॉर के पास में था और कैंची बिल्कुल टहरा था। कैंची के ज़रिए ड्रॉर को खोलने का वो कोशिश किया है। अगर वो खुलता तो उसका सॉफ्ट टारगेट अमाउंट को लेना था, वो अमाउंट को नहीं ले पाया है, तो पूरा खुरापाती करके। मेरा नाम मोहम्मद वहीउद्दीन सिद्दीकी, मैं अपने स्कूल इकरा पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। रानीगंज के ईस्ट कॉलेज पाड़ा विवेकानंद पल्ली में एक चोरी की घटना सामने आई है। दिसंबर के बीते 29 तारीख को दिलीप प्रसाद सिंह एवं उनकी पत्नी अनीता देवी सिंह और उनके बेटे आशीष सिंह के साथ यात्रा के लिए बनारस घूमने गए थे।
यात्रा कर सुबह जब अपने घर लौटे तो देखा कि घर का मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और अंदर में भी दरवाजे टूटे हुए हैं एवं उनके घर के अंदर अलमारी में रखे गहनों को बदमाशों ने चुरा लिया। अलमारी में लगभग चांदी के 6 जोड़े पायल, 18 चांदी के सिक्के, सोने के चैन, मंगलसूत्र सहित और भी गहने बदमाशों ने चुरा लिए। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है। इस तारीख का रात में गया था। कहाँ गए थे? बनारस गए थे। तो क्या देखे? आज कब आए आप लोग? आज हम आए 4 बजे। अच्छा, आके क्या देखे? देखा गेट खुला हुआ है, फिर भीतर आया तो देखा ये गेट टूटा हुआ है। अच्छा, और अलमारी खुला हुआ है। ताला, एंट्रेंस गेट में भी ताला तोड़ा हुआ था। हाँ। और फिर यहाँ पे जब आए, ये रूम का भी ताला तोड़ा हुआ। हाँ। फिर अंदर जब आए तो क्या देखे? अंदर आया तो देखा लॉकर सब खुला हुआ है, अच्छा, सब यहाँ पर बिखरा हुआ था सामान। लॉकर चांद के खोल दिया क्या? हाँ, चार के बिखरा हुआ। चढ़ा हुआ था। क्या सामान आपका गया है, मतलब चोरी? वही सब सोना का सामान गया है। क्या क्या था सामान? क्या क्या था? 2 चेन, मंगलसूत्र, कान में 3 जोड़ा, शाखा और पोला दोनों सोना का, जितिया, 6 जोड़ा पायल, नाग छब्बी था 2 ठो, और चांदी का कॉइन था 16-17 पीस, और एक ठो डब्बा में चांदी का छोटा छोटा सामान भर के रखा हुआ था, वो डब्बा गए बाहर। पैसा था एक ठो ये साइज का बैग में। नकदी कितना था? कैश कितना था? मतलब ऐसे हम नकदी 3,000 3,500। 29 के रात में गए थे, वही 10-11 बजे के लमसम में कहाँ गए थे? गए थे बनारस घूमने के लिए, न्यू ईयर था इसीलिए। अच्छा, उसके बाद रिटर्न कब आए? रिटर्न आए कल रात में, वही 2 तारीख के सुबह समझ लीजिए 4 बजे। 4 बजे आके क्या देखे आप लोग? आके देखे कि ये गेट में ताला खुला हुआ था, आधा लॉक था, और गेट खोले तो अंदर देखे कि लाइट जला हुआ है रूम का। तो फिर अंदर गए, देखे कि यहाँ ताला टूटा हुआ था अलमारी का, सारा सामान बिखरा पड़ा था, मतलब लॉकर में। पहले एंट्रेंस का गेट का ताला तोड़ा गया, फिर पहले अंदर एंट्रेंस का, रूम हाँ पहले एंट्रेंस का तोड़ा गया है, फिर अंदर का तोड़ा गया है, फिर चाबी निकाला गया है, खोला गया, फिर लॉकर का उसको चाबी नहीं मिला है तो लॉकर तोड़ा गया है। क्या मतलब सामान चोरी हो चुका है? सामान सोना का जितना भी था सारा सामान, सिल्वर कॉइन, सोना का चेन, और भी बहुत सारा सामान था। तो मम्मी का था, मम्मी को ही पता है। कुछ लिक्विड कैश? हाँ, कैश था 4-5-6 के लमसम में। 4-5 कितना? 4-5 क्या? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। रानीगंज थाना रोड अंतर्गत थाना के पास के एक दुकान नदिया शांतिपुर साल रिपेयरिंग हॉल नामक एक लॉन्ड्री है जो कि साल 1924 से ब्रिटिश पीरियड से बना हुआ है। लॉन्ड्री 100 वर्ष में पदार्पण की। इसी के तहत लॉन्ड्री के मालिक मंजूर अली ने फूल माला से दुकान को सजाकर दुकान को फिर से उद्यापन किया। নদিয়া শান্তিপুর সাল রিপেয়ারিং হল আজ মানে এই দোকান পূর্তি কত বছর হলো? আমাদের 3টে পিঁড়ি চলছে। প্রথমে আমার দাদু ছিল, তারপর আমার বাবা কাকা, তারপর আমরা আছি। 3 জেনারেশন চলছে। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে মঞ্জুর আলী। আচ্ছা, আজকে রানীগঞ্জে প্রেস বার্তার সাথে সাথে মানে রানীগঞ্জ শহরবাসীকে কি মেসেজ দেবেন আজকে এই লন্ড্রি সম্বন্ধে? রানীগঞ্জবাসীকে মেসেজ দেবো যে ওনারা তো আমাদের আশীর্বাদ খুব করেছে এবং পরেও আশীর্বাদ করবে, এটা জানি। আর আমার একটা দোকানের নিয়ম কি আছে কি, আমি কাস্টমারকে কাস্টমার ভাবি না, আমি ঘরের লোক ভাবি। এটা কাস্টমারদের জিজ্ঞাসা করলেও আপনারা পাবেন। আচ্ছা, কিছু আমাদের দোকান হচ্ছে ইংরেজ আমলের, ঠিক আছে? তখনকার দিনে প্যান্ট শার্ট হতো না, তখন শালই হতো। সেই জন্যে নদিয়া শান্তিপুর শাল রিপেয়ারিং হল। শাল হতো বলতে মানে কি? শাল ড্রাই ক্লিন, শালই ওয়াশ হতো খালি। আচ্ছা, শাল, শাড়ি, আর টাঙ্গাইল শাড়ি, শাল, এইসব জিনিসই ওয়াশ হতো। কোন সালে হয়েছিল মানে এই দোকান? এটা ওই 1924 1924। हाँ हाँ हाँ, अच्छा पड़ा। पहले दुकान था हम लोग का बहुत पुराना मॉडल का। उसके बाद मेरा पिताजी लोग आया, ये दुकान तोड़ के, ये दुकान लगा, किसी को पता नहीं चलता है। ये दुकान पहले ऊंचा में था बहुत, उसके बाद नीचे तोड़ के इसको नीचे किया गया। उसके बाद से हम, उसके बाद जितना दूर तक हमको याद है, उसके बाद से हम बैठना चालू हुआ। স্যার আর একটা কোশ্চেন পাই এখান থেকে যদি আমাদের জানান। আমি তো যতটা পারি সুবিধা দিই, কাস্টমাররাও নাম করে। আর আমার তো লোকাল কাস্টমার না, আমার বাইরের কাস্টমারও বহুত আছে। সব দিক থেকে বাঁকুড়া আছে, বিহার বেঙ্গলের বর্ডার আছে, পাণ্ডবেশ্বর আছে,
এরকম করে চারিদিক থেকে আমার কাছে কাস্টমার আসে। রানীগঞ্জ, পশ্চিম বর্ধমান, রানীগঞ্জ মেন থানার পাশে নদিয়া লন্ড্রি, নদিয়া শান্তিপুর লন্ড্রি। আপনার নাম? মঞ্জুর আলী। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीबी न्यूज। कमीशन बढ़ाने की मांग सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में आज आसनसोल, रानीगंज, कुल्टी आदि इलाकों के राशन डीलरों ने हड़ताल किया। इनका कहना है कि लंबे समय से यह लोग पुराने कमीशन पर काम करते आए हैं। कई बार सरकार से इन्होंने अनुरोध किया कि इनका कमीशन बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। आखिरकार इन्होंने आज से हड़ताल से जाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ आसनसोल में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में किया जा रहा है। इनका कहना था कि इनको अभी भी पुराने रेट पर कमीशन मिल रहा है, जबकि इनका कमीशन बढ़ाया जा चुका है, लेकिन अभी भी बढ़ा हुआ कमीशन इनको दिया नहीं जा रहा है। इन्हीं सब मांगों के समर्थन में आज यह हड़ताल की गई। ঠিক আছে তো রেখে দে। কি নিয়ে আজকে আপনারা এই করছেন? আমাদের আন্দোলন কমিশন বৃদ্ধি নিয়ে, আমাদের 16 দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন চলছে পুরো রাজ্য জুড়ে, আর পুরো ইন্ডিয়া জুড়েও আমাদের এই আন্দোলন চলছে। স্ট্রাইকটা পুরো ইন্ডিয়াতে 1 তারিখ থেকে স্ট্রাইক চলছে। আপনাদের আসানসোলে কতজন এতে শামিল হয়েছে? আসানসোল, বার্নপুর, কুলটি এসআর এলাকার দোকানদাররা 74 জন আমরা এখানে প্রেজেন্ট আছি। আমাদের সব দোকানই বন্ধ আছে। তো আপনারা যে দাবি দেওয়া, এর আগেও তো আপনারা আন্দোলন করেছেন। আন্দোলন করে দাবি রেখে যাতে আমরা পরিষেবাটা বন্ধ করিনি, এই কারণে কি দাবিরা ওরা শুনে নেবেন, কিন্তু আমাদের আন্দোলন অনেক দিন ধরে চলে আসার পরও এরা দাবি কোনো সুরাহা করছে না। অনেকগুলো দাবি আছে, সেই দাবিগুলো না মানার জন্য আমরা অসুবিধায় পড়ছি। তার জন্য বাধ্য হয়ে আজকে আমাদের ওই পরিষেবাটা বন্ধ করতে হবে। আপনাদের মূল দাবি কি আছে আপনাদের? মূল দাবি কমিশন বাড়ানো, পরে একটা শর্টেজের ব্যাপার আছে, সেটা 1 কিলো করে দাবি আছে। আমাদের আর একটা দাবি আছে যেটা ইপসের আমাদের যে সার্ভিস মানে চালাই, তার ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় মাল গোলমাল ঢুকিয়ে দিয়েছে। সেই গোলমালগুলো জোর করে আমাদের বলে এটা এখন মিলিয়ে রাখুন, পরে আমরা ঠিক করব। সেটা 2 বছর ধরে আমরা বলে বলে আসছি, কোনো সুরাহা হয়নি। এবার ওই সুরাহারও ওর মধ্যে দরকার আছে। 16 টাকা একটা 47 মাস 2016 থেকে কমিশন বেড়ে আমাদের 70 টাকা হয়েছিল, 54 টাকা ছিল। সে 47 মাস আমাদের 54 টাকাই দিয়েছে। সেই দাবিটাও এখনো পূরণ করেননি, কি 16 টাকা বাকিটা দেবো, এই দাবি আছে। আরও অনেক দাবি আছে। দোকান এখন বন্ধ রয়েছে? এখন দোকান বন্ধ রয়েছে আমাদের, যতক্ষণ আমাদের দাবিগুলো না শুনছে। আমাদের নেতৃস্থান বিশ্বম্বরদা যে আমাদের পরিচালনা করে খাদ্য ভবন, ওইখানে কলকাতাতেই উনি থাকেন, সেখান থেকে যদি কোনো সম্ভবত কোনো আলোচনা যদি দিক বেরিয়ে আসে, তারপরে আমাদের কি সিদ্ধান্ত হবে সেটা নিয়ে আমরা থাকবো। আপাতত বন্ধ থাকবে। আর 16 তারিখে রামলীলা ময়দান দিল্লিতেও আমরা ডেপুটেশন দেব প্রধানমন্ত্রীকে, কি আমাদের এই দাবিগুলো মানা হোক। আমার নাম মহেশ কুমার শর্মা, এখানকার মানে আসানসোল, বার্নপুর, কুলটি সাধারণ সম্পাদক। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीबी न्यूज। श्री श्री छिन्नमस्ता काली मंदिर समिति के तत्वाधान में आज कुल्टी के दिसेरगढ़ क्षेत्र के दामोदर घाट महाशमशान इलाके में भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता कृष्णेंदु मुखर्जी के सौजन्य से कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया। यहाँ कृष्णेंदु मुखर्जी के अलावा ईसीएल के सोदपुर क्षेत्र के जीएम अमृतांजन नंदी, ईसीएल के तकनीकी निर्देशक नीलांद्री रॉय, ईसीएल के अधिकारी नीलेंद्र कुमार सेन और मंदिर समिति के महासचिव माणिक लाल आचार्य मौजूद थे। कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि माणिक लाल आचार्य उनके गुरु के समान है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही उन्हें बताया था कि वह यहाँ जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वह माणिक लाल आचार्य के निमंत्रण पर पहुंचे। इस महान आयोजन में एक छोटे से तरीके से मदद का हाथ बढ़ाकर खुद को धन्य महसूस किया। সম্পাদক মানিক লাল আচার্য, সভাপতি নন্দদুলাল আচার্য এবং আমার কমিটির বিভিন্ন সদস্যগণ, আমি শ্রীযুক্ত রায় সাহেব, অমৃতাঞ্জন রায় সাহেব এবং কৃষ্ণেন্দু মুখার্জিকে আমি অনুরোধ করব আমার এখানে আসার জন্য। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीबी न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है मां भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना।
लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के मां भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। केंद्र सरकार द्वारा बस, ऑटो सहित विभिन्न वाहनों के चालक को लेकर एक नया कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत कोई हादसा होने की सूरत में उसे वहां से चालक को 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ आज आसनसोल के राजू अहलूवालिया के नेतृत्व में परिवहन करवाने विरोध प्रदर्शन किया। राजू अहलूवालिया का कहना था कि केंद्र की भाजपा सरकार जन विरोधी नीतियां अपना रही है। जिस तरह से यह नया कानून बनाया गया है वह परिवहन कर्मियों के खिलाफ है और वह कभी भी इस कानून को नहीं मानेंगे। इसी के खिलाफ आज आसनसोल के परिवहन कर्मियों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। राजू अहलूवालिया का कहना था कि जब तक केंद्र सरकार अपना यह कानून वापस नहीं ले लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या अमित शाह का काला कानून लाया हुआ, एक ड्राइवर पे जुर्माना किया है, 10 साल का सजा, 5 से 7 लाख रुपये का फाइन। अगर मेरे पास 5-7 लाख रुपया होगा तो फिर हम ड्राइवरी करने के लिए क्यों जाएंगे? सारी जिंदगी ड्राइवरी करके बाल बच्चे को इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ा सक रहे, हिंदी स्कूल भेजने का सलाहियत नहीं हो रहा, दिन रात घर दरवाजे छोड़ के बाल बच्चे के लिए मर रहे हैं। उसके बाद भी ये कानून मेरे साथ। सारी दुनिया में ईमानदारी से हम मेहनत करते हैं, किसी का अमानत जिस तरह से देता, अमानत को अमानत अपने जान पे खेल के देश का सेवा करते हैं। কারণে আন্দোলন দেখুন, যে ড্রাইভারদের একটা নতুন নতুন আইন করে দিচ্ছে ওরা, কে মানে যাতে যে ড্রাইভাররা কোনো রকম রোজগার করে খাচ্ছে তাদের রোজগার কি করে কেড়ে নেওয়া যায়। রোজ নতুন নতুন আইন, কালো আইন পাস করছে। ওরা আইন পাস করছে কে ড্রাইভার যে আছে রান অ্যান্ড ড্রাইভ কি একটা আইন করে দিচ্ছে নতুন। পুরো ভারতবর্ষে মোটর দেখছেন কি অবস্থা, পুরো ভারতবর্ষে কিন্তু আগুন লেগে গেছে, ড্রাইভাররা পথে নামছেন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে। তো আমরাও এটা বলতে চাইছি, ড্রাইভার যারা গাড়ি চালান, কোনো ড্রাইভার নিজে ইচ্ছা দিয়ে কোনো দুর্ঘটনা করেন না, কেন তারাও একটা পরিবার থেকে এসেছেন, তাদের পরিবার আছে। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে এটা কালো আইন করে কি করে ড্রাইভারদের রোজগার কেড়ে নেওয়া যায়, কিভাবে ওদেরকে বেরোজগার করা যায়, এটাই বিজেপির চক্রান্ত। এই চক্রান্তকে বিরুদ্ধে আমরা কিন্তু আজকে নেমেছি। যেখানে জনগণ বিরোধী কাজ হবে, যেখানে বিজেপি আমাদের সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করবে, সেখানে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেক কার্যকর্তা কিন্তু রাস্তায় নামবে, তার প্রতিবাদ করবে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। आज दुमका सर्किट हाउस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी प्रेस को संबोधित करते हुए तो डर काहे का, तो भाई जेल में भी इतना हिम्मत और संपादक को धमकी देना तो आप समझ सकते हैं। हमने कई एक बार विषय को उठाया, एक बार मैंने कहा कि जो भी इस प्रकार के दुर्दांत जिसको अपराधी कहते हैं जेल में होते हैं, तो वैसे अपराधियों को उन जेलों से तो हटाने चाहिए था, शिफ्ट करना चाहिए था, बाहर भेज देना चाहिए था झारखंड से। लेकिन चूंकि हेमंत सोरेन का उन सारे लोगों के साथ जो संबंध है और वास्तव में वही सारे लोग सत्ता का संचालन कर रहे थे, चाहे टिकट मैनेज करना हो, टेंडर मैनेज करना, अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग करना हो, ये खुला चल रहा था। पहले भी मैंने आप सब लोगों को कई दफा कहा था, जब आपने देखा होगा कई DSP स्तर के अफसरों का ट्रांसफर होता है, नोटिफाई भी होता है, खाली मूवमेंट ऑर्डर को भी रोक दिया जाता है और फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो मैंने कई दफे मैंने लोगों से कहा, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं तो हमें पता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है।
अगर पुलिस विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो एक तो तरीका ये होता है कि डीजी के यहाँ से फाइल बढ़ता है, फिर गृह मंत्री और गृह मंत्री के बाद मुख्यमंत्री के यहाँ से फाइल जाता है और फिर वो ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल पर सिग्नेचर हो जाता है, फिर उसी रास्ते से वापस लौटता है और होम विभाग के होम सेक्रेटरी फिर उसको नोटिफाई वहाँ से हो जाता है और उसके बाद अगर रुक जाता है, इसका मतलब इससे इतर भी सत्ता चलाने वाले लोग हैं। अब वो स्पष्ट हो गया, वो सत्ता चलाने वाले लोग आज के तारीख में होटवार जेल में लोग बंद हैं और अब वहीं से सत्ता का संचालन हो रहा है और इसीलिए हेमंत सोरेन भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, आयवास करती है। एक घटना आप सब लोगों के ध्यान में है, हमें जानकारी मिली कहीं से और हमने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने सरकार को लिख के दी, तो सरकार ने एक जस्टिस के लिए रिटायर चीफ जस्टिस के नियोग मैंने जज के नियोग एक अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किए सिंगल, और फिर बाद में उसको क्लीन चिट दिया गया। हमने कहा कि भाई अगर आपको इसी प्रकार से करना रप्पा दफा, तो मेरा आज भी कहना है कि इस प्रकार के मामला आप छोड़ दीजिए जुडिशियरी कमीशन को। जेल से बाहर थे तो सत्ता समझ एक प्रकार से उन्हीं लोगों के साथ मिलकर के हेमंत सोरेन चला रहे थे। आप जब दलाल और बिचौलिया जब अंदर गए तो जेल से ही वो लोग सत्ता का संचालन कर रहे हैं और चला रहे हैं। और उन लोगों के ऊपर अगर किसी जेलर ने भी कार्रवाई की और मजबूती से पेश आए तो आपने देखा कि ऐसे अफसरों को भी वहां से हटा दिया। और उसके बाद तो हद तब हुई, आप सबको पता है कि वे जेल से किस प्रकार से अखबार के संपादक को धमकी दी जाती है। ये बड़ा ही गंभीर मामला है मैंने अपने आप, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जेल से धमकी दी है उसका जुड़ाव भी दुमका से है। आप सबको पता है योगेंद्र तिवारी जी का नाम, और उन लोगों का संबंध योगेंद्र तिवारी का शिबू सोरेन परिवार के साथ कितना है, वो कौन जगह है, वो क्या बोलते हैं उसको, लखी कुंडी में जो घर है और घर के बाद जो शिबू सोरेन का कैंपस है, जो बाउंड्री वाला जो घेरा हुआ है, उस घेरा की जमीन जो मेरे नाम से है, मेरे जानकारी में है, तो वो किसके नाम से है, आपके योगेंद्र एंड कंपनी के नाम से है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। हिट एंड रन कानून के विरोध में देश के अन्य हिस्सों के साथ पश्चिम बंगाल में भी ट्रक और अन्य गाड़ी चालकों ने चक्का जाम करना शुरू कर दिया है। ट्रक चालकों ने आज बंदरगाह क्षेत्र में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नया कानून लाया है जिसमें हिट एंड रन मामलों में गाड़ी चालकों को 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का मुआवजे का प्रावधान है। हिट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है और इसी कड़ी में आज सुबह से कोलकाता के बंदरगाह क्षेत्र के विभिन्न इलाके में ट्रक चालकों ने सड़क जाम कर दी। ट्रक मालिकों ने यह भी चेतावनी दी कि अगर यह काला कानून वापस नहीं लिया गया तो वे आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। डानकुनी टोल प्लाजा से सटे दुर्गापुर एक्सप्रेस वे को अवरुद्ध करके विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों ट्रक चालक शामिल हुए थे। कई जगहों पर ट्रक चालक को पुलिस हस्तक्षेप से हटाया गया है। हम लोगों का
ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पूज्य माता की 14वीं पुण्यतिथि पर पैतृक गांव कल्याण विघा पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले देवी स्थान पहुंचकर पूजा अर्चना किया। उसके बाद राम लखन सिंह वाटिका जाकर अपनी माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी की 14वीं पुण्यतिथि के मौके पर पुष्प अर्पित कर नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी कविराज राम लखन सिंह वाटिका में स्थित अपनी पत्नी व पिता की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूर्व की तरह वाहनों का काफिला रुकते ही सबसे पहले देवी स्थान पहुंचकर पूजा अर्चना कर सुख शांति व समृद्धि की कामना की। उसके बाद घंटों से प्रतीक्षा कर रहे उपस्थित लोगों को अभिवादन स्वीकार करते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं दी। वाटिका से बाहर निकलने के बाद दर्जनों फरियादियों का शिकायत सुना और आवेदन लिया। कल्याण विघा में सीएम के आगमन को लेकर पुलिस व सामान्य प्रशासन काफी चौकस थी। पुलिस प्रशासन के द्वारा वाटिका के आसपास रस्सी तानकर घेराबंदी किया गया ताकि कोई वाटिका के आसपास पुलिस के बगैर अनुमति के पहुंच ना सके। सीएम के अपने पैतृक गांव कल्याण विघा के दौरा के दौरान हरनौत प्रखंड को अनुमंडल बनाने का मांग समाज सेवी लोगों के द्वारा किया गया। नहीं, स्पीकर हैं और स्पीकर जिस पार्टी के हैं तो उनके नेता से नहीं मिलेंगे। हम लोग अपने नेता से नहीं मिलते हैं, सब लोग अपने नेता से मिलते हैं। और नए साल आने वाला है, पुराना साल जाने वाला है, इसकी शुभकामना देने के लिए लोग आते रहते हैं। तो अटकल का बाजार गर्म करने वाले भाजपा का तो यही काम है, दुष्प्रचार करना और दुष्प्रचार करके मीडिया को नियंत्रण में रखना। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी का करता रहता है। और जो बात नहीं होने वाला है वही सब मीडिया के माध्यम से जनता में भ्रम पैदा करने के लिए कुछ न कुछ चलवाते रहते हैं, जिससे जनता भी बेचारी कुछ भर में पड़ने वाले पड़ जाते हैं। बाकी सब तो जानते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। और आप भी देख रहे हैं यहाँ, आप देख लीजिए कि जब वो कार्यक्रम में आए हैं तो यहाँ की जनता में कितना विश्वास है उनके प्रति। और आज जब उन्होंने कार्यभार संभाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो सब लोग में बहुत उत्साह है, बहुत खुश है। और इन पे तो सब पूरे बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता विश्वास करती है इन पे। ये तो विश्वास का एक दूसरा नाम नीतीश कुमार है। बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। देखिए, बेचैनी किस में बढ़ी है, क्या बढ़ी है, ये तो अलग बात है। हम लोग अपना क्या करते हैं, हमारे माननीय नेता जो है न्याय के साथ विकास करने के जनक हैं, वो समझ लीजिए। हम लोग जो सब वो लोग बात करता है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। आज से देश में अनिश्चित काल के लिए राशन डीलर्स की हड़ताल शुरू हो गई है, जिसके कारण बंगाल में भी राशन डीलरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने मंगलवार को 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी राशन हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल की वजह से देश भर के 5 लाख से ज्यादा राशन दुकानें बंद होने की आशंका है। मंगलवार सुबह केशपुर क्षेत्र में राशन डीलर हाथ में पोस्टर बैनर लेकर हड़ताल के समर्थन में सड़कों पर निकले। उनके साथ इस संगठन के महासचिव विशंभर बोस भी थे। उन्होंने कहा कि हड़ताल की 7 सूत्री मांगों पर आधारित है। इसमें उनकी मृत्यु पर पूर्ण की भांति अनुकंपा का लाभ, 60 वर्ष की बाध्यता समाप्त करने, दुकानदारों को नवंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक का बकाया कमीशन का भुगतान करने, ग्रीन कार्ड का जनवरी से अप्रैल 2023 तक का बकाया कमीशन देने, दुकानदारों को 1 रुपये की जगह 3 रुपये प्रति किलो कमीशन देने, सभी दुकानदारों के प्रति माह 30,000 रुपये मानदेय देने, तब तक ई पोस्ट मशीन को वजन मशीन से नहीं जोड़ने और लाभुकों को ई पोस्ट मशीन 2 माह का राशन वितरण करने की सुविधा देने शामिल है। हमारे मूल दाबी हलो जे আমরা সৎভাবে মাথা উঁচু করে মানুষকে তাদের বরাদ্দ রেশন প্রতি মাসে সময় মতো তুলে দিতে চাই। তার জন্য আমাদের পারিশ্রমিক দরকার, সেই পারিশ্রমিক কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার দিচ্ছে না। আমাদের ন্যূনতম মাসিক আয় 50,000 টাকা দাবি, রেশন ব্যবস্থায় বরাদ্দ বাড়াবার দাবি এবং এই সেপ্টেম্বর মাস থেকে রাজ্যের খাদ্য দপ্তর পিডিএস কন্ট্রোলারের নামে যে আদেশনামা জারি করেছেন সেই আদেশনামা প্রত্যাহারের দাবিতে এবং উন্নত মানের চাল গম সরবরাহের দাবিতে আমাদের এই বন্ধ আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের বন্ধ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কেন্দ্রের খাদ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, তার কপি আমাকেও পাঠিয়েছেন।
আমাদের সাথে আমাদের দাবি নিয়ে বসার জন্যে। এখনও খাদ্য দপ্তর থেকে কোনো চিঠি, কোনো মিটিংয়ের ডেট আমরা পাইনি। যদিও গত শুক্রবার যখন আমরা ধর্ণা দিচ্ছিলাম সেই সময় আমাদের রাজ্য খাদ্য দপ্তর থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। খাদ্য দপ্তরের স্পেশাল সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি, ডাইরেক্টর রেশনিং এবং ডেপুটি ডাইরেক্টররা তারা আলোচনায় বসেছিলেন, কিন্তু মূল যে জায়গাগুলো সেই জায়গাগুলো নিয়ে কোনো সদর্থক ভূমিকা তারা আসতে পারেনি, যার জন্যে আমরা বন্ধে নামতে বাধ্য হয়েছি। এই বন্ধের ফলে দেশের 80 কোটি 35 লক্ষ মানুষ এবং রাজ্যের 8 কোটি 80 লক্ষ মানুষ যারা খাদ্যসাথী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত আছেন, তাদের কোনোভাবেই আমরা রেশন থেকে বঞ্চিত হতে দেবো না। আন্দোলন প্রত্যাহার হওয়ার পরে সেই তাদের প্রাপ্য মাল আমরা তাদের হাতে তুলে দেবো, এটা আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। আগামী 16ই জানুয়ারি আমাদের রামলীলা ময়দানে জমায়েত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন, সংসদ অভিযান এবং 17 জানুয়ারি আমাদের সমীক্ষা বৈঠক। আমরা পরবর্তী কর্মসূচি আপনাদের মাধ্যমে আমরা ঠিক জানিয়ে দেব। বিশ্বম্বর বসু, জাতীয় সাধারণ সম্পাদক, ऑल इंडिया फेयर प्राइस सॉफ्ट डीलर फेडरेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबागान। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। समय के साथ आवास गृह धीरे धीरे जमीनी स्तर से नीचे चले गए। परिणाम स्वरूप बरसात के मौसम में घर में पानी भर जाता है या कभी कभी घर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। ऐसे में माथे पर बड़ी चिंता आ जाती है कि घर को दूसरी जगह कैसे ले जाया जाए या फिर इससे कैसे छुटकारा पाया जाए कि उसमें पानी ना भर जाए। बड़ी समस्या यह आती है कि खर्च करने के बाद भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। मुर्शिदाबाद जिले के लोवेपुर में एक निजी इंजीनियरिंग कंपनी असंभव को संभव बना रही है और लोगों के लिए इसे मुश्किल बना रही है। दुर्गापुर के रामकृष्ण पल्ली में निवासी शाहद दास बहुत तंगी में है। उन्होंने ऊंचे नाले के बगल में उनका घर होने के कारण बरसात के दिनों में पानी घुसने की समस्या से जुड़ना पड़ा। उन्होंने इस समस्या से निजात पाने के लिए लोवेपुर स्थित कंपनी में संपर्क किया। कंपनी के प्रबंधक राजेश बाबू ने कहा कि कोर्ट में समझौता कराने के बाद घर के मालिक के साथ हाइड्रोलिक विधि से वैज्ञानिक तरीके में काम किया गया है। जैक की मदद से घर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए 1 मीटर यानी करीब 3 फीट ऊपर उठाया जा रहा है। इससे बाढ़ के दौरान पानी से बचाव होगा और साथ ही घर मजबूत होगा। হঠাৎ করে এরকম ভাবনা কোথা থেকে এলো? আমি বেনাচিটিতে আরেক জায়গায় করেছিল নতুন পল্লীতে, সেখানে দেখে আমার মোটামুটি মেমোরিতে ঢুকিয়ে নিয়েছি যে এটা করলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কি সমস্যার জন্য এটা করতে হচ্ছে? মানে ঘরে জল ঢুকে যেত বর্ষাকালে, একটা আলাদা একটা চিন্তা থাকতো যে বর্ষাকালে এসছে এইবার বোধহয় জল ঢুকেছে, ওই জন্যই এই ডিসিশন নিই। আচ্ছা, কতটা খরচ সাপেক্ষ মনে হলো যে নতুন করে? তো ব্যয়বহুল খরচ, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য আমি ওকে হয়ে যাবো। বলছে ভেঙে করার থেকে কি এইভাবে তোলাতে সুবিধা হলো? ভেঙে করলে অনেক মানে পয়সা কড়ির ব্যাপার, অনেক খরচের ব্যাপার, কিন্তু এটা তার থেকে অনেক কম হচ্ছে। বলছে তাতে পরে বিল্ডিংয়ে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে না তো? কিচ্ছু হবে না, যেই সিস্টেমে করছে কিছু হওয়া উচিত না। আপনার নাম? সম্পদ দাস। বলছে কি করা হচ্ছে এখানে? জেনারেল বিল্ডিংটা জ্যাকের সাহায্যে হাইট করা হচ্ছে, লিফটিং করা হচ্ছে। বলছে কত ফুট অবধি এটাকে? অলরেডি বিল্ডিংটা 1 মিটার লিফটিং হবে। 1 মিটার আর 2 ফিট লিফটিং হলো। আচ্ছা, কিভাবে এরকম লিফট করা? পুরো জ্যাকের সাহায্যে বিল্ডিংটা লিফটিং হচ্ছে। আচ্ছা, কত কি খরচ পড়ে আর কতটা? এটা আমাদের 200 টাকা স্কয়ার ফিট, 3 ফুট অবধি, আর 30 বছরের কোর্ট এগ্রিমেন্ট থাকে। আর আমাদের অফিস হচ্ছে বোলপুর নতুন পুকুরে।
বলছি বিল্ডিংয়ের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে না 0% রিস্ক 100% গ্যারান্টি উইথ কোর্ট এগ্রিমেন্টে কাজ হয়। কোনো রকম প্রবলেম হলে আমরা সেটা সলভ করবো। আচ্ছা বলছি কতজন লোককে এরকম ইনভলভ করতে হয় এরকম বিল্ডিং? অলরেডি আমরা অল ওভার ইন্ডিয়াতে কাজটা করি। যেমন আমার বেলডাঙ্গাতে একটা 115 ফুট একটা বিল্ডিংকে শিফটিং করছি, তবে এখানে যেমন বিল্ডিংটা লিফটিং করছি। আর যে কোনো কাজের উপর কোর্ট এগ্রিমেন্টে কাজ হয় আমাদের। বলছি এতে পরে মানুষের কতটা সুবিধা হয়? 75% প্রফিট এগুলো। আচ্ছা 75% খরচ কি বেঁচে যায়? বেশি খরচ বেঁচে যাবে। কোথা থেকে আপনারা আসছেন? আমার বাড়ি হচ্ছে লাভপুর, লাভপুর থেকে আসছেন। এটা করাতে যাদের করে দিচ্ছেন তাদের কতটা সুবিধা হয়? তাদের অ্যাকচুয়ালি ধরুন এই বাড়িটা নতুন করে বাড়িটা ভেঙে করতে গেলে প্রচুর টাকা খরচা, সেই পরিমাণে 75% ওনার প্রফিট হচ্ছে। আর নতুন বাড়ি করতে আমাদের 10 লাখ টাকা খরচা হয়, সেটা আমরা মাত্র 2 লাখ টাকার মধ্যে এটা করি, 2 থেকে 3 লাখ টাকার মধ্যে আমরা তুলে দিচ্ছি। বলছি যেমন একটা বিল্ডিং শক্ত রাখতে গিয়ে ভিত কলমের ব্যবস্থা করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে সেখান থেকে ভেঙে এইভাবে তোলা তাতে করে সেখানে হয় আমরা চুনসুটকে অবধি তুলি বিল্ডিং। আচ্ছা ঠিক আছে। আপনার नाम? আমার নাম রাকেশ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। पीडीएस नियंत्रकों के नाम पर मानसिक प्रताड़ना। ई पोस्ट मशीनों में गलत स्टॉक दिखाने और 50,000 रुपए की न्यूनतम मासिक आय की गारंटी की मांग को लेकर निजी स्वामित्व वाले राशन डीलर राज्य भर में हड़ताल पर है। दुर्गापुर में राशन हड़ताल के कारण कई राशन दुकानें बंद है। ऑल बंगाल फेयर प्राइस शॉप डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन पश्चिम बर्धमान शाखा के महासचिव तनय कुमार मंडल दुर्गापुर के सिटी सेंटर की एक राशन की दुकान के सामने आंदोलन में शामिल हुए और शिकायत की कि उन पर अतिरिक्त लागत का बोझ डाला जा रहा है। मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। पीडीएस नियंत्रकों के नाम वजन तौलने की मशीन के साथ डीलरों के कंधों पर समस्या का समाधान नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। राशन डीलरों के आंदोलन से ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। আজকে আমাদের সারা ভারতবর্ষে রেশন ধর্মঘটে আমরাও পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ ডিলাররা সামিল হয়েছি। সারা ভারতবর্ষে এই বন্ধ পালিত হচ্ছে। আমরা দোকান বন্ধ রেখেছি এবং ইপস মেশিনও বন্ধ রেখেছি। কি ইস্যুটা কি? ইস্যুটা হচ্ছে আমাদের ডিসেম্বর 2021 হতে মার্চ 2022 খাদ্য দপ্তর যে অ্যালটমেন্ট আমাদেরকে অনলাইনে করেছিল সেই অ্যালটমেন্ট আমরা পাইনি। আমাদেরকে ম্যানুয়ালি মাল দেওয়া হয়েছিল অনেক কম এবং ইপস মেশিনে আমাদের অনলাইনে যে অ্যালটমেন্ট সেটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ধরা যাক আমি 100 কুইন্টাল মাল আমাকে অ্যালটমেন্ট করা হয়েছে ইপসের সাহায্যে মেশিনের মাধ্যমে অনলাইনে। আমি ডিস্ট্রিবিউটারের কাছ থেকে আমি মাল পেয়েছি 70 কুইন্টাল। তাহলে 30 কুইন্টাল মাল আমার ঘাটতি রয়ে গেল। এই 30 কুইন্টাল মাল আমার মেশিনে শো করছে এবং এই 30 কুইন্টাল মাল থেকে আমার সিবি মাইনাস করে আমাকে মাল দেওয়া হচ্ছে। এতে করে দোকান পরিচালনা করা খুবই অসুবিধার সম্মুখীন আমরা হচ্ছি। আমরা বারে খাদ্য দপ্তরের কাছে জানিয়েছি লিখিত আকারে। অল বেঙ্গল ফেয়ার প্রাইস অফ ডিলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি বিশ্বম্বর বসু মহাশয় জানিয়েছেন এবং তার কোনো আমরা প্রতিকার পাইনি, এখনও পর্যন্ত পাইনি। না, এছাড়া আমাদের 6-7টা ডিমান্ড আছে। যেমন আমাদের বর্তমান কমিশন আমরা পাচ্ছি 75 টাকা করে, আমরা 95 টাকা করে। আমরা আমাদের কমিশন বৃদ্ধি করার জন্য বলছি, কারণ কমিশন বৃদ্ধি না করলে দোকান পরিচালনা করা খুবই অসুবিধা। আমাদেরকে ন্যূনতম মাসিক আয় 50,000 টাকার গ্যারান্টি দিতে হবে। যে 50,000 টাকা আমাদের দোকান থেকে রোজগার কীভাবে হবে সেটা খাদ্য দপ্তরকে আমরা অনুরোধ করছি যে আমাদের 50,000 টাকার গ্যারান্টি দেওয়া হোক, যে আমরা 50,000 টাকা রোজগার করতে পারবো এবং আমাদের জীবন জীবিকা সুস্থভাবে চালাতে পারবো আমাদের পরিবারকে। এছাড়াও 2016 সালে জানুয়ারি মাস হতে 2019 নভেম্বর মাস পর্যন্ত আমাদের যে 47 মাসের যে বকেয়া টাকা কুইন্টাল পিছু 16 টাকা করে, সেই টাকাও আমাদেরকে দিতে হবে। কতজন দুর্গাপুরে এমনি আজকে বন্ধ রেখেছে? আজকে সারা পশ্চিমবাংলায় 22,000 দোকান আছে। মোটামুটি 80% দোকান আজকে বন্ধ আছে। যদি আমাদের দাবি দাওয়া না মানে খাদ্য দপ্তর,
এই বন্ধ চলবে এবং আমরা কখনোই চাই না গণবন্টন ব্যবস্থা ব্যাহত হোক। আমরা করোনাকালে প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের সময় যেরকম আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে পিডিএসকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, আমরা সেইভাবেই পিডিএসকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই, আলোচনাই করতে চাই খাদ্য দপ্তরের সঙ্গে এবং আমরা কখনোই চাই না যে গণবন্টন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ুক। মানুষের যে খাদ্যদ্রব্য, সেই খাদ্যদ্রব্য আজকে দিনে না পেলেও সারা মাসের মাল আমরা যদি আমাদের দাবি মেনে নেয়, আমরা সারা মাসের মাল আমাদের যারা বেনিফিশিয়ারি আছে তাদের হাতে আমরা তুলে দিতে পারব। আপনার নাম? আমার নাম তনয় কুমার মণ্ডল, পশ্চিম বর্ধমানের আমি साधारण संपादक। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। गोमैन ब्रिज फुटबॉल मैदान में प्रत्येक वर्ष की तरह दुर्गापुर नगर निगम की तरफ से इस वर्ष भी कल्पतरू संस्कृत मेला का आयोजन किया गया था। मेला का उद्घाटन सोमवार की शाम को राज्य के मंत्री मलय घटक, राज्य के पंचायत एवं समवाय मंत्री प्रदीप मजूमदार ने फीता काट कर एवं दीप प्रज्वलित कर मेला की सूचना की। इस दौरान उपस्थित दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के अधिकारी आबिर मुखर्जी एवं दुर्गापुर नगर निगम के चेयरपर्सन आनंदिता मुखर्जी, बोर्ड के सदस्य राखी तिवारी, SBTSTC के चेयरमैन सुभाष मंडल, महकमा शासक डॉक्टर सौरभ चैटर्जी, इलाके के पूर्व पार्षद एवं मेला कमेटी के सदस्य मौजूद थे। इस बार कल्पतरू संस्कृत मेला में 150 से अधिक स्टॉल विभिन्न जिला से आए हैं। इसके अलावा हर वर्ष की तरह कृषि मेला किताब में मेला भी लगाया गया है। इस कल्पतरू सांस्कृतिक मेला में दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। कारण नेशनल हाईवे रास्ता पार कर लोगों को आना पड़ता है। इसके लिए ट्रैफिक की व्यवस्था रहती है ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। इसके साथ ही पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। मेला कमेटी की तरफ से बताया गया है कि मेला 10 दिन चलता है। प्रत्येक दिन ही सांस्कृतिक अनुष्ठान किए जाते हैं। मेला कमेटी की तरफ से बताया गया है कि मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 10 लाख रुपए दिए गए थे, इस बार भी दिया जाएगा। ओम नमो श्री ज्योतिराजाय विवेकानंद सूराय सचित सुख स्वरूप। আমার শুভেচ্ছা জানাই। এই যে কল্পতরু উৎসব ৭১ বছরে পদার্পণ করেছে, এই উৎসবে 2012 থেকে প্রতি বছরেই আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং আমি এখানে থাকি এবং দেখছি যে প্রতি বছরেই কিছু না কিছু উন্নয়ন এই উৎসব থেকে হচ্ছে এবং অনেক কাজও এরা করে। আমি জানি যে এই উৎসবের টাকা থেকে দু একটা পার্ক হয়েছে, এবার এই উৎসবের টাকা থেকে এই বাউন্ডারি ওয়াল হয়েছে এবং প্রতি বছর তারা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান দিয়ে থাকেন। এবারেও আমাকে জানানো হয়েছে যে এই উৎসবের তরফ থেকে 10 লক্ষ টাকা তারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দেবেন। তার জন্য আমি সত্যি খুব আনন্দিত। গতবারও তারা দিয়েছিলেন, তার আগের বারেও দিয়েছিলেন। কারণ মুখ্যমন্ত্রীর যে ত্রাণ তহবিল, সেই ত্রাণ তহবিলে যারা আমাদের রাজ্যে বসবাস করেন এবং যাদের প্রয়োজন তাদের সাহায্যের হাত তিনি বাড়িয়ে দেন। তাই এটা নিশ্চয়ই ধন্যবাদ যোগ্য। আমি এই কমিটির যারা রয়েছেন, কমিটির প্রত্যেকটা আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। এই কল্পতরু উৎসব অর্থাৎ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেব জানেন যে তার শেষ জীবনে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং একদিন একটু সুস্থ অবস্থায় তিনি বেরিয়েছিলেন এবং একটু আগে কে বলছিলেন, আমি শুনছিলাম যে গাছের তলায় এসে বসেছিলেন, অনেকে দেখা করতে এসেছিলেন। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज।